अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप निकाल सकते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान उवाच। कोई मंत्र चैंटिंग करना चाहेगा? श्लोक 9.1। अनुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। Word to word meaning. The Supreme Sri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Idam, this, tu, but, te, unto you, guhyatamam, most confidential, pravakshyami, I am speaking, anasuyave, to the non-envious, jnanam, knowledge, vijnana, realized knowledge, sahitam, with, yad, which, gyatva, knowing, mokshase, be released, ashubhat, from this miserable material existence. Translation. The Supreme Lord said, My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most sacred wisdom, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. Purport. As the devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed amongst devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness, and give him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has
such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he has already disclosed. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book, and in the 2nd and 3rd chapters, the spiritual knowledge described is called confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are especially related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the 9th and 10th chapter, 9th chapter deals with unalloyed pure devotion. Therefore, this is called the most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamar Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. Now, this first verse has specific significance. Knowledge, idam jnanam, refers to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. At the time when one's heart is cleared of the material contamination, one can understand this science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and spiritual activities, by which one understands that he is not the body. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior and superior natures, and all this material manifestation. Now, in chapters 9 and 10, the glories of the Lord will be delineated. The Sanskrit word anusujave in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, we are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. Their commentaries are useless. The commentaries given by devotees of Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So, such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Thus ends the Bhakti Vedanta purport. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakti Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, माय डियर अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे से कभी एनवियस नहीं है। क्या नहीं है? एनवियस नहीं है। आप मेरे से कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं आपको मोस्ट सैक्रेड विजडम, मोस्ट सीक्रेट विजडम है ना, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है ना, मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। नोइंग विच यू शैल बी रिलीव्ड ऑफ मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, जिसको जानकर क्या हो जाएंगे आप? हाँ, जो भौतिक संसार के दुख है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी पर्पट्स में लिखते हैं कि कोई भी भक्त है ना, एज ए डिवोटी हियर्स मोर एंड मोर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, ही बिकम्स एनलाइटन्ड, एंड दिस हियरिंग प्रोसेस इज रेकमेंडेड इन श्रीमद् भागवतम। भगवान के बारे में श्रवण करना, जितना भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना ही ज़्यादा हम शुद्ध होते जाएंगे, प्यूरिफाइड होते जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में ये प्रोसेस रेकमेंड की गई है। द मैसेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर फुल ऑफ पोटेंसीज एंड दिस पोटेंसीज कैन बी रियलाइज्ड इफ टॉपिक्स रिगार्डिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर डिस्कस्ड अमंग्स डिवोटीज। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ मेंटल स्पेकुलेटर्स और एकेडमिक स्कॉलर्स, फॉर इट इज़ रियलाइज्ड नॉलेज। तो भगवान से संबंधित टॉपिक्स है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भक्तों के एसोसिएशन में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर कोई मेंटल स्पेकुलेटर है, बहुत बड़ा थिंकर है, बहुत कुछ सोच सकता है ना, बहुत सारे लॉजिक्स दे सकता है, लेकिन भक्त नहीं है, तो भगवान का मैसेज नहीं समझा सकता हमको। और कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है ना, उसको सारे संस्कृत के रूल्स पता है, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है वो पता है, फिर उसको कैसे समझाना है लोगों को वो पता है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन वो भगवान का मैसेज नहीं समझा सकता, क्योंकि ये सीक्रेट विजडम है। क्या है? सीक्रेट विजडम है। मान लो कि आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपके आगे की सीट पे 2 लोग बैठे हैं, 2 यंग लड़के बैठे हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं कि आज शाम को हमें मिलके धमाका करना है। क्या करना है? आज शाम को मिलके क्या करेंगे? धमाका कर देंगे। आप उनकी बातें सुन रहे हैं, आप उनकी बातों से क्या 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 आइडियाज़ लगा सकते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। बताइए, एक एक करके बताओ। आपने सुना उनकी बातों में वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि शाम को क्या करेंगे? धमाका कर देंगे। आप बैठ के सुन रहे हैं, तो आप क्या आइडिया लगा सकते हैं क्या करने वाले लोग? उनका कुछ मकसद हो सकता है, और पटाखे फोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सूतली बम चला देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे, या फिर पार्टी करेंगे, और हाँ डीजे बजा देंगे। और धमाके का तो कुछ भी मतलब हो सकता है। आप उनकी बातें सुन के कैसे पता कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं? तो जब तक आप उन लोगों को जानते नहीं है कि वो कौन है ना, जब तक आप उन लोगों को जानते नहीं है पर्सनली कि ये दोनों लोग हैं, वो कौन है, तब तक वो क्या बातें कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगी। आ जाएगी? नहीं आएगी। और स्पेशली जब थोड़ा सा कोड वर्ड में बात करेंगे तब तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। और आप चाहे कितने ही एक्सपर्ट हैं लिंग्विस्टिकली, आपको पूरे भाषाओं का ज्ञान है
और आप उस बात को सुन के बहुत ही लॉजिकली तर्क लगा के और अलग अलग है ना एंगल ऑफ थॉट से उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास भी कर लें, लेकिन फिर भी आप उसको वास्तविकता में नहीं प्रस्तुत कर सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते, जब तक आप उन दोनों लोगों को जानते नहीं हैं, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि तो भगवान का जो मैसेज है ये ट्रांसेंडेंटल है, तीनों गुणों से परे है, भौतिक बंधन से मुक्त है, और इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो तीनों गुणों से मुक्त है, और वही इसको समझा सकता है। और ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, इट इज़ फुल ऑफ पोटेंसीज। इसको सुनने से आप लोग भी क्या हो जाएंगे, अगर हम इस ज्ञान को सुनेंगे हम भी क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि इस ज्ञान का नेचर क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। इसको टच करने से, इसको सुनने से हम भी क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो हियरिंग प्रोसेस का ये पावर है, और इसको समझा कौन सकता है, केवल और केवल वही व्यक्ति समझा सकता है जो उन दोनों लोगों को जानता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण को पता है कि मुझे अर्जुन जानता है, इसलिए मेरी बात को समझ सकता है ना। और भगवान को ऐसा क्यों लगता है कि अर्जुन मुझे जानता है, अर्जुन मेरी बात को समझ सकता है, क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, भगवान से एनवियस नहीं है। हम सब लोग इस भौतिक जगत के अंदर पतित हैं, पतित आत्मा जिनको बोलता है ना। क्यों हमारा पतन हुआ है, क्योंकि हम कृष्ण से एनवियस हैं। तो इस भगत में इस भौतिक जगत के अंदर जो पतित आत्माएं हैं, वे अलग अलग डिग्री में सब लोग भगवान से क्या है, एनवियस हैं। भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है ना, कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड, उनसे लोग हम क्या है, एनवियस हैं। तो जब तक वो एनवियसनेस रहेगी तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते, उनके मैसेज को नहीं समझ सकते। तो उनके मैसेज को समझने का तरीका क्या है, तो इसमें बता रहे हैं कि दिस मैसेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड आर फुल ऑफ पोटेंसीज एंड दिस पोटेंसीज कैन बी रियलाइज्ड इफ टॉपिक्स रिगार्डिंग द सुप्रीम गॉडहेड आर डिस्कस्ड अमंग्स डिवोटीज। अगर हम भगवान के मैसेज को भक्तों के साथ में डिस्कस करेंगे, भक्तों के बीच में उसको डिस्कस करेंगे, तब हम उस मैसेज को क्या कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो जब तक भक्तों के साथ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, कृष्ण कथा नहीं करेंगे, तब तक हम न तो भगवद गीता समझ सकते हैं, न श्रीमद् भागवतम समझ सकते हैं, न कृष्णा कॉन्शियसनेस को रियलाइज कर सकते हैं, है ना। तो डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हियरिंग करना ज़रूरी है। हम लोग हियरिंग ही नहीं करेंगे तो डिस्कस क्या करेंगे, है या नहीं। वही आईपीएल डिस्कस करेंगे, आईपीएल देखते तो आईपीएल डिस्कस करेंगे, है या नहीं। जो लोग शेयर मार्केट पूरे दिन देखते रहते हैं वो शेयर मार्केट ही डिस्कस करते हैं। तो जो लोग रीडिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं। सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और रीडिंग करने से क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, द लॉर्ड अंडरस्टैंड्स द मेंटलिटी एंड सिंसियरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी हु इज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड गिव्स हिम द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। अगर कोई डिवोटी बहुत ही सिंसियर है, सीरियस है, भगवान के मैसेज को समझने में, स्पिरिचुअल सब्सटेंस को समझने में, स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने के लिए, और भगवान की सेवा में लग जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी सिंसियरिटी को देख के उसके हार्ट के अंदर उस जो सीक्रेट नॉलेज है उसको क्या करते हैं, रिवील करते हैं। क्या करते हैं, रिवील करते हैं। इसलिए सर्विस और सरेंडर दोनों क्या है, आवश्यक है। सर्विस और सरेंडर दोनों आवश्यक हैं। एंड कृष्णा गिव्स
him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. तो उसको भक्तों का संग प्रदान करते हैं ताकि वो क्या कर सके, इस नॉलेज को समझ सके, रियलाइज कर सके। तो ये जो नॉलेज केवल और केवल भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, राइट। भक्तों की संगति में ही इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता और भी बुक्स है ना, स्मॉल बुक्स, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भक्ति रसामृत सिंधु, इन सब को ट्रांसलेट किया है और इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, देन श्लोका का मीनिंग, देन उसका पर्पट के अंदर जो अदर स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ से रेफरेंसेस, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी कमेंट्रीज, उससे रेफरेंसेस, है ना। तो ये सब क्यों लिखा है? ताकि हम लोग इस स्पिरिचुअल सब्सटेंस को समझ सकें, है ना। स्पिरिचुअल सब्सटेंस को, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को हम लोग समझ सकें, इसको रियलाइज़ कर सकें। रियलाइज़ करने का जो मेथड है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इफ़ वन सिंसियरली एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन भगवान हमारी मेंटलिटी समझते हैं पहले कि ये चाहता क्या है ना। ये माला भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, अब ये चाहता क्या है। तो अगर हम वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान हमको इंटेलिजेंस देते हैं ताकि हम कृष्ण को समझ सकें इन एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। तो हमारा चाहना बहुत ज़रूरी है या नहीं। हम कभी कभी एसोसिएशन में रहते हैं, फोक निवास में रहते हैं, है ना, भक्तों के बीच में रहते हैं, हम मंगला आरती भी अटेंड करते हैं, हम क्लासेस भी अटेंड करते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कृष्ण को समझना, है या नहीं। हम चाहते कुछ और हैं, तो तब तक भगवान उसको रिवील नहीं करेंगे। लेकिन जब हम भगवान को समझना चाहते हैं, जब हमें भगवान को समझने की डिज़ायर होती है, तब भगवान हमको क्या देते हैं? सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग देते हैं। तो भक्तों के संग में क्या होता है? भगवान कृष्ण 10th चैप्टर में बताते हैं, 10.9 बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरे भक्त हैं वो क्या करते हैं? द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल्स इन मी, देयर लाइव्स आर सरेंडर्ड टू मी एंड दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस, एनलाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी, है ना। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनके विचार हमेशा किस में रहते हैं? भगवान कृष्ण के बारे में वो चिंतन करते रहते हैं। द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल्स इन मी, उनका जीवन हमेशा भगवान को सरेंडर्ड रहता है। एंड उनको बहुत आनंद मिलता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। किस चीज़ में? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो हमेशा मेरे बारे में डिस्कस करते रहते हैं और इस मैसेज को एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, है ना। तो सुनाने में और सुनने में दोनों में उनको क्या मिलता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, उनको उससे बहुत संतुष्टि मिलती है ना। एंड रमन्ति च, रमन्ति मीन्स आनंद मिलता है। तो भगवान के बारे में डिस्कस करने में और भगवान के बारे में सुनने में, इन दोनों चीज़ों में मेरे शुद्ध भक्तों को क्या मिलता है? बहुत आनंद मिलता है, राइट। तो भगवान के भक्त जो हैं उनका काम क्या है? भगवान के बारे में डिस्कस करना, भगवान के बारे में सुनना। तो भगवान के नाम हो गया, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, ये सब क्या है? ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इनका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं, भगवान इस भौतिक जगत के पार्ट नहीं है या नहीं।
भगवान की लीलाएं, ये सब भौतिक जगत से परे हैं। अगर हमें भौतिक जगत की जो परे की चीज़ें हैं उनको हमें समझना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा, है ना। उससे हमारी शुद्धि होती है। जैसे भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध होता है ना। तो किस चीज़ से शुद्ध होता है, कौन सी अशुद्धि है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर कंटेमिनेशन है वो किस वजह से है? हाँ, मटेरियल वर्ल्ड का एसोसिएशन, है ना। और 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? 3, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों के संपर्क में आने के कारण हमारी जो चेतना है वो क्या हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है, राइट। तो अगर इससे मुक्त होना है, इस कंटेमिनेशन से बाहर निकलना है, तो ऐसी वस्तु की हेल्प चाहिए जो क्या हो, इन तीनों गुणों से परे हो। तो जब तक वो वस्तु तीनों गुणों से परे नहीं होगी तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते, है या नहीं। अगर आप रजोगुण में हैं और रजोगुण की चीज़ों के संपर्क में ही रहते हैं तो आप रजोगुण से बाहर नहीं आ सकते। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, उसको और जाके शराब पिलाओ तो उसका नशा थोड़ी उतरेगा, है ना। और कोई तमोगुण में है और वो नहा भी नहीं रहा है और नशे भी कर रहा है, तो तमोगुण से बाहर नहीं आ सकता। तमोगुण से बाहर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तमोगुण का एसोसिएशन छोड़ना पड़ेगा। किसी न किसी गुण का तो आश्रय उसको लेना ही पड़ेगा। तो या तो वो रजोगुण का आश्रय लेगा तो तमोगुण से बाहर आएगा, सतोगुण का आश्रय लेगा तो रजोगुण से बाहर आएगा। तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जैसे कठपुतली जो होती है, पपेट, उसको जैसे कठपुतली वाला कैसे कंट्रोल करता है, वैसे ही 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जीव को इस संसार के अंदर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। ये प्रकृति जीव को डांस करवाती है, नचाती है। हम उसके संपर्क में आते हैं, हमको लगता है कि हम इस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति हमको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो हमको क्या लगता है, हम इस प्रकृति को कंट्रोल में कर लेंगे, या हम इस प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते और हम प्रकृति के कंट्रोल में आ जाते हैं, है ना। तो 14 चैप्टर के अंदर भगवान बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं अर्जुन को 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। तो अगर हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं तो बोलते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो हम भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से भौतिक जगत से मुक्त कैसे हो जाते हैं? क्योंकि भगवान का नाम क्या है, इन तीनों गुणों से परे है। श्रीमद् भगवद गीता का जो नॉलेज है वो क्या है, तीनों गुणों से परे है। जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है, तीनों गुणों से परे है। इसलिए इनको अगर आप समझेंगे तो क्या होगा, भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। शुद्ध भक्तों की वाणी है वो क्या है, तीनों गुणों से परे है, ट्रांसेंडेंटल है। तो जिस चीज़ के हम संपर्क में रहेंगे वैसी हमारी विचारधारा, वैसी हमारी मेंटलिटी, वैसी हमारी सोच, है ना, वैसा हमारा कॉन्वर्सेशन, वैसा हमारा लक्ष्य, ये सब उसी से निर्धारित होते हैं कि हम किन चीज़ों के संपर्क में रहते हैं। हमारा जो फ्यूचर है, इवन प्रेजेंस भी, दोनों किससे डिसाइड होते हैं कि हम किन वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं, किस गुण के संपर्क में रहते हैं। तो अगर आप सतोगुण के संपर्क में रहेंगे तो सात्विक विचार होंगे, तमोगुण के संपर्क में रहेंगे तो तामसिक विचार होंगे, रजोगुण के संपर्क में रहेंगे तो राजसिक विचार होंगे। तो ये एसोसिएशन का पावर होता है। एक ऋषि थे, ये रामायण में स्टोरी आती है, सीता माता राम जी को सुनाती है, सीता माता राम जी को सुनाती है। जब वो दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं अत्रि मुनि और अनुसुईया से मिलके,
तो भगवान रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण मुनि, शरभंग मुनि, इन सब से मिलते हैं। और जब वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं तो वहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सारे जो भी राक्षस हैं जो ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालते हैं उन सबको मैं समाप्त कर दूंगा। और भगवान वहाँ से डिसाइड करते हैं कि मैं जो है बाकी ऋषि मुनि जो इस जंगल में रहते हैं उन सब से मैं मिलना चाहता हूँ। तो ऋषि मुनि को बोलते हैं कि वास्तव में तो मैं जंगल में आप लोगों से मिलने के लिए ही आया हूँ, है ना। तो इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। तो वो घूम घूम के सभी ऋषियों से मिलते हैं, सबकी कुटिया में जाके, उनके आश्रम में जाके सबसे मिलते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो माता सीता भगवान रामचंद्र जी को बोलती है, उनको स्टोरी सुनाती है कि आप हमेशा अपने पास में धनुष रखते हैं, है ना, लेकिन आप जो हमेशा आप इसको कंट्रोल में रखिएगा। तो सीता माता बोलते हैं कि हालांकि आप जो है जितेंद्रिय हैं, आपको मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जस्ट आउट ऑफ लव जो है मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ बात आ रही है इसलिए बताना चाहती हूँ, वरना आपको कौन सिखा सकता है ना, आपको सब कुछ ज्ञान है। तो उनको बोलती है कि आपके हाथ में हमेशा धनुष रहता है, तो आप कभी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी मत मानो, है ना, जो जानवर है ना, इनको आप कभी मत मारिए। केवल जो तो भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं क्षत्रिय का धर्म है लोगों की रक्षा करना, तो उसके लिए तो मैं इसका उपयोग करना पड़ेगा, बाकी कभी भी निर्दोष को हम नहीं मारेंगे। तो सीता माता उनको स्टोरी सुनाती है कि एक बार क्या हुआ, इंद्र, उन्हें पता चला कि कोई ऋषि है, वो तपस्या करके अपने तपोबल के प्रभाव से उनके पास इतना तपोबल हो चुका है कि वो इंद्र का स्थान ले सकते हैं और ब्रह्मलोक में भी प्रवेश कर सकते हैं। इतना उनका स्पिरिचुअल क्रेडिट हो चुका है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस होता है, उसको उसका तपोधन इकट्ठा हो जाता है, तो इंद्र जो क्या करते हैं, उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं। तो इंद्र सोचते हैं कि इसको, इनका तपोबल कैसे छीन किया जाए ताकि मेरा पोजीशन नहीं लेंगे। तो इंद्र उनके पास जाते हैं, ऋषि के पास, बोलते हैं कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? ये गिफ्ट आप ले लीजिए, इसको मैं आपको देना चाहता हूँ। तो बोले दीजिए, क्या देना चाहते हैं? तो बोले ये मेरी तलवार है, आप इसको अपने पास रखिए। तो बोले ठीक है, रख दीजिए, यहाँ पर रख दो। तो तलवार उनके आश्रम में रख के चला जाता है इंद्र। देन ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे तो रोज़ तलवार को देखते हैं। वो क्या करते हैं? रोज़ तलवार को देखते हैं, दूर से ही देखते हैं बस। एक दिन देखते, इसको टच करके देखते हैं। अगले दिन क्या करते हैं? वो टच करके देखते हैं, टच करते हैं, फिर उसको अपने साथ में ही रखने लगते हैं। कहीं जाते हैं तो तलवार भी साथ में ले जाते हैं। बड़ी सुंदर सी तलवार थी, तो उसको साथ में लेके जाते हैं। फिर सोचते हैं इसको खोल के देख लेता हूँ, फिर उसको निकालते हैं, अंदर रखते हैं, वापस निकालते हैं, देखते हैं बढ़िया है, निकालते हैं। तो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है कि धीरे धीरे जो ऋषि है वो क्रूर कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उस तलवार का उपयोग करने लग जाते हैं और क्रूर कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हाँ, जानवरों को मारने लग जाते हैं, है ना, और इस प्रकार से अपनी तपस्या से नीचे गिर जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, उस वस्तु का आपके पास वो रखी है, तो मन हमेशा उसके ऊपर रहेगा, उसको कैसे उपयोग में करना, वो सारे विचार जो है मन में आएंगे। तो ये एसोसिएशन का प्रभाव है, आप किन चीज़ों की संगति कर रहे हैं, है ना। जस्ट एक तलवार थी वो, लेकिन क्योंकि उनके पास में रखी थी तो उन्होंने उसको उपयोग में लाना स्टार्ट कर दिया। तो ये एसोसिएशन का प्रभाव है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। भगवान का नाम है या नहीं, और भगवद गीता है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ है, डिवोशनल सर्विस है, डीटीज़ है, फेस्टिवल्स है, एकादशी है, डिवोशनल सर्विसेज हैं, कितनी सारी चीज़ें जिनसे हम एसोसिएट हो सकते हैं। ये आध्यात्मिक तलवार की तरह है। प्रभुपाद जी की बुक है ना, ज्ञान की तलवार,
जो क्या करती है, अज्ञान को काट देती है। तो सतोगुण में रहना क्यों आवश्यक है? भगवान बोलते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वम प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानगम। हालांकि जो सतोगुण है वो भी बंधन का कारण होता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से क्या है, बेटर है। ओ सिनलेस वन, द मोड ऑफ गुडनेस बीइंग प्योरर देन द अदर्स इज इल्यूमिनेटिंग एंड इट फ्रीज वन फ्रॉम द ऑल सिंफुल रिएक्शंस। Those situated in that mode develops knowledge, but they become conditioned by the concept of happiness. है ना? तो अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, उसको समझना है, तो उसको सबसे पहले किस में आना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण में आके वो ट्रांसेंडेंटल चीज़ों को एसोसिएट कर सकता है, उसको समझ सकता है, और उनसे प्योरीफाई होके खुद भी क्या हो सकता है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से मुक्त हो सकता है ना। इसलिए आपको बोला जाता है आप मंगला आरती में आइए, सुबह नहा धो के आइए, राइट। क्योंकि जब आप सतोगुण में रहेंगे तो ट्रांसेंडेंटल चीज़ों का बहुत जल्दी उसका इफेक्ट पड़ेगा आपको, है ना, बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो भी हम सर्विसेज करते हैं उसमें सूची रहना है, क्या रहना, मतलब सतोगुण में रहना है, तमोगुण में नहीं रहना। किस में रहना है, सतोगुण में रहना। तो सतोगुण में रहेंगे तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसको समझने की पात्रता हमारे अंदर आएगी, यानी उसको हम समझ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। देन जितना हम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के साथ एसोसिएशन रहेगा उतना ही हम प्यूरिफाई होते रहेंगे। तो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ट्रांसेंडेंटल है ना, ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये सारा प्रभुपाद जी की बुक्स में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है, उसको एक्सप्लेन किया है ना। एक पूरा जो क्रीम है वो सब प्रस्तुत कर दिया। अब हम उसका कितना उपयोग करते हैं, कितना उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और ये पर्सनली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर घोड़े को आप तालाब के पास ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। घोड़ा होता ना, उसको आप तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। अगर पानी पिलाना है तो घोड़ा अपनी मर्जी से ही पिएगा, है या नहीं। तो वैसे ही आपके जो फ्रेंड्स हैं, डिवोटीज़ हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, ये बुक लीजिए प्रभु जी, बुक पढ़िए, ये वाली क्या करना है आपको, ये बुक पढ़नी है, ये माला ले लो, आप क्या कर लो, माला करो। लेकिन माला करना, बुक रीडिंग करना, वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में। वो आपको ज़बरदस्ती बिठा के कोई नहीं पढ़ा सकता। हालांकि कभी कभी बिठा पढ़ाते भी होंगे आपके जो सीनियर्स हैं या प्रभु जी हैं कि चलो बैठो बैठो पढ़ो, है ना, बुक पढ़ते हैं, आज बुक रीडिंग करते हैं। कभी कभी आपको अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी चलो प्रभु बोल रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। लेकिन वो पढ़ना, उस चीज़ को समझना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, रूपा जी लिखते हैं परपट में, द लॉर्ड अंडरस्टैंड्स द मेंटेलिटी एंड सिंसियरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी हु इज़ एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हमें कुछ न कुछ एस्पेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का अच्छा लगा है, इसलिए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए। किसी को प्रसाद अच्छा लगा, किसी को कीर्तन अच्छा लगा, किसी को जो है फेस्टिवल अच्छा लगा होगा, किसी को डीटीज़ अच्छी लगी होंगी, किसी को कल्चर अच्छा लगा होगा, किसी को प्रभु जी अच्छे लगे होंगे कि प्रभु जी बढ़िया है, या किसी को अपना जो दोस्त है उसके साथ साथ आ गया होगा। तो सब अलग अलग वजह से आ जाते हैं। लेकिन जब हम सर्विस में एंगेज होते हैं तो हमको कितना समझ में आएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कितना हमको रियलाइजेशन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सब लोगों की वीकली सर्विसेज लगती होंगी, सब अपनी सर्विसेज करते होंगे, सब माला भी करते होंगे, लेकिन हमको जो समझ में आ रहा है, जो रियलाइजेशन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है कि भगवान कृष्ण कितना हमें उस नॉलेज को रिवील करते हैं, या भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको कितना हमें रिवील करते हैं उस ज्ञान को, है ना। और वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, रिविलेशन
हमारी सिंसेरिटी पे और हमारी मेंटलिटी पे कि क्या हम उसको समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। आप अगर गुलाब जामुन खाना चाहते हैं और फिर आपको कोई गुलाब जामुन खिलाए तो खाने वालों को भी मज़ा आए और खिलाने वालों को भी मज़ा आए। आप तो खाना ही नहीं चाहते, ज़बरदस्ती कोई मुंह में ठूस भी देते ना तो आपको मज़ा आएगा और मैं खिलाने वाले को मज़ा आएगा, है या नहीं। तो हम उसको समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम गुरु पूजा में गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितम। ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है इसको भगवान और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स उसको हमारे हार्ट में रिवील करते हैं, है ना। वो हमारी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए डेली हमको नियम बना लेना, डेली हमको प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है। तो जितना हम रीडिंग करेंगे अच्छे से, जितना हम उसको अध्ययन करेंगे और सिंसियरली हम भगवान की सेवा करेंगे, तो जो बुक्स हैं, जो भगवान के प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं, वो अग्नि की तरह है, एक आध्यात्मिक फायर की तरह है, स्पिरिचुअल फायर की तरह है। और जो स्पिरिचुअल फायर है वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का जो कंटेमिनेशन है उसको क्या कर देती है, विनाश कर देती है, उसका शुद्ध कर देती है उससे हमें। तो दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, हम इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और उस मेंटलिटी से, उस सिंसियरिटी से हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं उस फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ, तो वो प्रोसेस बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। उसमें बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है। इस भौतिक जो रोग है, भव रोग है, इससे हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो डेली सबको क्या करना है, अच्छे से रीडिंग करना, अच्छे से प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी है ना। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पढ़ने का मतलब क्या है कि हम पर्सनली प्रभुपाद जी का एसोसिएशन ले रहे हैं, श्रील प्रभुपाद का पर्सनल एसोसिएशन ले रहे हैं हम, है ना। प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप शुद्ध भक्त की संगति कर रहे हैं। लव मात्र साधु संग संगे सर्व सिद्धि है। अगर एक क्षण मात्र भी किसी शुद्ध भक्त का एसोसिएशन लेते हैं तो आपको जो है लाइफ का परफेक्शन मिल जाएगा। अब सोचो अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ेंगे, है ना, मान लो अभी हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं है, लेकिन पढ़ते 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 उसका एसोसिएशन लेने की जो अग्नि जो है उसमें रॉड डालेंगे, धीरे 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 वो जो है गर्म होगी, तो हमारा भी इंजन जो है धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, है या नहीं। और भौतिक जो कलमश है, भौतिक कंटेमिनेशन है, उससे हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, है ना। आत्मा का जो शुद्ध रूप है वो डेवलप हो जाएगा और सारा विकार जो है, कंटेमिनेशन सारा नष्ट हो जाएगा। तब जो है हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं एंड ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, जो दिव्य आनंद है, उसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस है। और ये सेम चीज़ जो सिंसियरिटी, सीरियसनेस, ये सारी चीज़ें हर चीज़ में अप्लाई होती है। चाहे हम चैंटिंग ले लें, चाहे रीडिंग ले लें, चाहे भक्तों का एसोसिएशन ले लें, चाहे सर्विसेज ले लें, हर चीज़ में ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक भी चीज़ में मन लगता है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों से भगवान कृष्ण बोलते हैं हियरिंग जो है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए डेली बुक रीडिंग बहुत सिंसियरली और सीरियसली उसको हमें करना चाहिए। एनी क्वेश्चन आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क रिगार्डिंग रीडिंग्स एंड अदर थिंग्स। मेरा पर्सनली ये मानना है और मैंने अपने सीनियर डिवोटी से जो सीखा है कि पहले आप रीडिंग कीजिए, है ना। कॉन्टेम्पलेशन जब हम करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, है ना, जिससे हम कॉन्टेम्पलेट कर सकें। तो अगर आपने सफिशिएंट रीडिंग किया है ना, जैसे कि आपने आज ही आपने बुक रीडिंग स्टार्ट की है या आपको केवल 1 साल हुआ है बुक रीडिंग करते हुए, तो आप कॉन्टेम्पलेट क्या करेंगे एटलीस्ट। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, रीडिंग करने पे।
आप पहले रीडिंग कीजिए पूरा, है ना। अंदर प्रोसेस वही होगा जो अंदर है, अभी अंदर गार्बेज है, तो बैठ के सोचेंगे तो भी क्या होगा, हम उसी मेंटेलिटी से, उसी विचारधारा से, उसी स्तर पे सोचते रहेंगे। तो बेटर है कि क्या कीजिए, रीडिंग कीजिए अच्छे से। तो जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, करते रहिए, तो एक बार एटलीस्ट आपकी बुक सारी फिनिश हो जाए, है ना, और आप सफिशिएंट हियरिंग कर लें, है ना, अच्छे से प्रभुपाद जी के लेक्चर समझ लें, तो उस कुछ समय के बाद हम कॉन्टेम्पलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें कॉन्टेम्पलेट क्या करना है वो भी हमें पता चले, हमारी जो कॉन्टेम्पलेशन है वो भी सही दिशा में जाए, है ना। तो कॉन्टेम्पलेट करना बहुत आवश्यक है, बट इनिशियल फेज़ के अंदर हमको पहले रीडिंग करना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही आपको समय मिले कॉन्टेम्पलेट करने का, तो आप सोच रहे थे इससे अच्छा तो मैं रीडिंग कर लेता हूँ बैठ के, है ना। तो आप रीडिंग करो अच्छे से। तो एक बार रीडिंग हो गया अच्छे से, देन उसके बाद आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है पहले रीडिंग कीजिए बेसिक। जैसे आप इसको, जैसे मटेरियल साइंस है, कुछ भी फिजिक्स है, राइट, और आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, और आपको जो है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो आपको पहले आपने क्लास अटेंड की, आप उस पर कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आता ही नहीं, आपने बस एक डेफिनेशन पढ़ी है ना, बस वही। तो उसमें आप क्या कॉन्टेम्पलेट करें, नहीं कॉन्टेम्पलेट करें। लेकिन जैसे जैसे आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब आप कॉलेज में चले जाएंगे, या फिर आप जो है PhD कर रहे हैं, तो आप बैठ के जो है कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, उस पर जो है विचार कर सकते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि उस समय आपको बहुत सारी चीज़ें भी जो है पता होने लगती है। आपका जो नॉलेज है, जो मटेरियल नॉलेज है, वो भी काफ़ी जो है आप ज़्यादा मैच्योरिटी से, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज़्यादा डीपली उसको सोच सकते हैं। बट इनिशियली हमको जो है श्रवण पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना, डिवोटीज एसोसिएशन पे। जैसे भी आप डाउट्स लिख सकते हैं अपने सारे, जब भी प्रभु जी आते हैं आप उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे समझिए। तो जब एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि हाँ अब आप जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, देन उसके बाद आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, भगवान से प्रेयर्स कर सकते हैं, है ना। और जो प्रेयर्स ऑलरेडी भागवतम में हैं, वो भगवान को प्रेयर्स हम ऑफर कर सकते हैं, उस पर हम चिंतन कर सकते हैं। भगवान से प्रोटेक्शन के लिए हम जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमारी खुद की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे इनिशियली किसी को बोलेंगे कुंती महारानी प्रेयर्स, तो उनको नहीं समझ में आएगी, है ना। या हम भी जब नए नए थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, तो कुंती महारानी प्रेयर्स नहीं समझ में आ रही थी, कुंती महारानी ऐसे क्यों बोल रही है। लेकिन जैसे जैसे हम भागवत प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुनते हैं, रीडिंग सुनते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाती है, उसके बाद हम कुंती महारानी प्रेयर्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम कुंती महारानी प्रेयर्स पढ़ेंगे, बैठ के उस पर कॉन्टेम्पलेट करेंगे, तो कॉन्टेम्पलेट करेंगे जो हमारे मन में थॉट्स होंगे वो सारे कैसे आएंगे, स्पिरिचुअल थॉट्स आएंगे, प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उनसे रेफरेंसेस आएंगे, जो हमने पढ़ा है सुना है वो सारी चीज़ें हमारे विचारों में आएगी, तो हम उस पर बहुत अच्छे से कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। तो कॉन्टेम्पलेट करना बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, है ना। स्पिरिचुअल चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पास उससे पहले कुछ कंटेंट अंदर होना चाहिए। तो उस कंटेंट होने के लिए क्या करना है, पहले रीडिंग करना है, उसके बाद हम कॉन्टेम्पलेट अच्छे से कर पाएंगे। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे है ना मटेरियल एसोसिएशन होता है, क्योंकि जो भी लोग हैं वो सब क्या है, मटेरियलिस्टिक हैं, और हम भी इतने स्पिरिचुअली अभी स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि उनको कन्वर्ट कर सकें या खुद अपने आप को स्थिर रख सकें, राइट। तो हम कैसे इस कंटेमिनेशन से बच सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, वैक्सीन होता है ना, वैक्सीन का डोज लग गया तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो वैक्सीन जो डेली लगती है हमें श्रीमद् भागवतम क्लास की,
कॉलेज जाने से पहले। वो वैक्सीन सबको अच्छे से लेके जाना, है ना। सुबह उठ गए, मंगला आरती अटेंड किया, जब किया अच्छे से, वैक्सीन लग रही है वो, समझ रहे हैं। उसके बाद भागवतम क्लास हमने श्रवण, है ना, हृदयंतस्तो ही भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान का मैसेज है, वो क्या करता है, हृदय की जो ग्रंथि है उसको क्या करता है, तोड़ देता है और उस हमारे हृदय को निर्मल करता है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर लेके आता है। तो यहाँ से तो हम 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर एकदम होके गए, है ना। या फिर हम बड़ा अच्छा एसोसिएशन लेके गए, बहुत अच्छा हम हियरिंग करके गए, लेकिन कॉलेज में जाएंगे तो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि हम कितना यहाँ से इम्यून होके गए, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेली साधना इम्पोर्टेंट है, तभी हम इम्यून रह पाएंगे। तो ये बात मान सकते हैं कि, और ये बात फैक्ट भी है कि हम अभी इतने शुद्ध नहीं हैं, तो थोड़ा तो इम्यूनिटी आएगा ना, भले पूरा नहीं आए तो क्या होगा, थोड़ा तो आएगा। एटलीस्ट सतोगुण में तो रहें कम से कम, है ना। आप ट्रांसेंडेंटल अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन सतोगुण में तो रह सकते हैं, तो सतोगुण में रहिए, है ना। और भागवतम समझने का प्रयास कीजिए, लेक्चर्स रीडिंग कीजिए, है ना। तो कंटेमिनेट वहाँ गए, थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया कॉलेज में जाके, लोगों की बातें सुनी, है ना, उनकी हरकतें देखी, तो हम क्योंकि देखते हैं तो भी एसोसिएशन हो रहा है, तो जैसे ही वापस आए, नहा लो पहले क्या कर लो नहा लो, तो उससे आप क्या आ जाएंगे, तो सतोगुण में आ जाएंगे। देन उसके बाद थोड़ा रीडिंग करो अच्छे से, जो पेंडिंग राउंड्स है वो, है ना, वो करो, तो वापस आप क्या हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे, है नहीं। वापस एक वैक्सीन लग गया। प्रसादम जो है वो भी एक ज़रूरी है, प्रसादम का वैक्सीन लग गया, तो वैक्सीन जो है लगाते रहो, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। भौतिक जगत के अंदर जो लोग हैं उनका एसोसिएशन हम अवॉइड नहीं कर सकते एक लेवल पे, क्योंकि आपको उनसे मिलना ही पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको, है ना, बाहर अब जब आप जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, लोगों से मिलना ही पड़ेगा। इवन प्रीचिंग के लिए भी आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, खुद को ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, और खुद को स्ट्रांग होने का यही तरीका है, डेली रीडिंग, डेली चैंटिंग, डेली डोज। जो डोज है स्पिरिचुअल डोज, ये डेली तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।